So 2 moles of an ideal gas expanded isothermally and reversibly from 10 dm cube to 20 dm cube, 20 liter to 30 liter at 300 Kelvin. Find the work done. तो यहाँ पे isothermal reversible ये word यदि है तो you can use the formula for W max. So सबसे पहले हम यहाँ एक चीज कर लेते हैं, V2 upon V1 निकाल लेते हैं. That is 30 by 20. That is 1.5. V2 upon V1 हमने पहले ही निकाल लिया है, right? So now W max will be equal to minus 2.303 nRT log ये कर लिया हमने 600 and then log of 1.5 is 0.1761. Okay. So this will be your the work. 2023 बोल रहे हैं. So this could be in kilojoule, 2.023 kilojoule भी हो सकता, otherwise you can write only 2. Okay, that was your first solved problem. So in all यहाँ पे number of moles directly given था 2 moles and the volume is from 20 to 30 liter means expansion. So W will be negative. यहाँ W max निकालो ऐसा कोई नहीं बोलेगा आपको. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आइसोथर्मल और रिवर्सिबल का कंडीशन उसमें इम्पोज किया है तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. ओके, सो चलते हैं दूसरे के लिए. 22 grams of CO2 are compressed isothermally and reversibly. 22 grams of CO2 is compressed. That has been compressed. तो हमारा जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव आना चाहिए वर्क डन के मामले में. 298 Kelvin from initial pressure of 100 kilopascal and the work done during this process is 1.2 kilojoule. Find the final pressure. Okay. So दूसरा प्रॉब्लम करेंगे. 4.5. Mass of CO2 is given as 22 gram. मोलर मास कितना होता है CO2 का? मोलर मास ऑफ CO2 is 44 ग्राम पर मोल. इस पर से निकलेगा आपका नंबर ऑफ मोल्स. That is 1/2. Number of moles निकाल दिया मैंने separately 1/2. Then secondly, that has been compressed and initial pressure is given 100 kilopascal. You have to find the final pressure. Compression है, कॉम्प्रेशन में वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर 100 किलोपास्कल से ज्यादा आना चाहिए. Then work done in this process is 1.2 kilojoule. अब मेरे को ये प्लस लिखना चाहिए because that is stated in the problem. It is a compression. So इसको मैं जूल में कर लूँ तो ज्यादा बेटर होगा. And then we can have the R. Okay. So since that isothermal reversible compression of the gas is stated in the problem and that's why we are writing it plus. So W max जो है वो given है आपके पास में nRT log. तो यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ V2 by V1 यहाँ पे हमको प्रेशर दिया हुआ है तो यू हैव टू यूज P1 by P2.
तो अभी ये टर्म जो है उसको साइड में कर देंगे, रिमेनिंग चीजें सारी इधर लेके चल जाएंगे हम। माइनस साइन भी दे देते इसको अभी का, देन दैट विल बी डब्ल्यू मैक्स अपॉन nRT. Now you substitute the values. That is 1200, 2.303, n का वैल्यू हाफ, r का वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर इज गिवन हाउ मच, 300 केल्विन. Okay, 298 Kelvin. T is 298 Kelvin. So this is given. तो पहले ये पूरा कैलकुलेशन हम करेंगे, बाद में इधर माइनस लॉग P1 बाई P2 हमारे पास में, उसका हम करेंगे जो करना है. सो नंबर ऑफ मोल्स हो गया है. For 26, that value comes out to be 4206. This is the calculation of this one. And now यहाँ पे जो माइनस साइन है वो हमारे लिए दिक्कत होगा. हम इसको P1 बाई P2 के ऊपर लेके जाएंगे. रेस टू द पावर -1 हो गया, तो आई कैन राइट P1 बाई P2. अब माइनस साइन भी नहीं रहा आपके लिए. नाउ यू कैन हैव दैट P2 बाई P1 इज इक्वल टू antilog of 0.4206. यस, एंटीलॉग देखते हैं इसका 4206 का, तो दैट कम्स आउट टू बी 3797. ओके, सो दिस इज व्हाट P2 बाई P1. नाउ इसमें से एक हमारे पास में है, initial pressure is known to you. Yeah, P1 is 100 kilopascal, right? So that will be 37.97 kilopascal, and that will be the final pressure of the gas. Is it so? (3797) should be the antilog. Antilog जो है उसका 3797. So ये कहाँ पे रुक गया देखिए. Which value is given? 100 initial or final? When the work obtained is 1.2, find the final pressure. P2 निकालना था हमको. या एंटीलॉग चेक करना एक बार 4206 का. या तुषार, एंटीलॉग ऑफ दैट 4206 का एंटीलॉग कितना है? यस, एंटीलॉग करेक्ट है क्या ये? या तुषार?
2644 राइट। और ये कैलकुलेशन 4206 4206 जो आया है वो करेक्ट है क्या? एक बार मैं कर लूं। ओके 1200 2 डिवाइडेड बाय 2.303, then R is 8.314. Okay, then T is there at 298. Yeah, 298 divided by 298 4206, ये तो सही है आपका। एंटीलॉग एक बार फिर से बता देंगे आप। टू 634, okay, this one, so that should be like this. Okay, then P2 is equal to 2.634 into P1 is 100 kilopascal. So this is the final pressure which is greater than P2 is greater than P1, implies it is a compression. ओके वहां पे जो माइनस साइन और ये वो किया है हमने, इतना सारा नहीं किया हमने, ये माइनस साइन इसके साथ में था, ये रेशो उल्टा कर दिया यहाँ पे P2/P1, तो माइनस साइन चला गया आपका और सीधे आंसर तक पहुंच गया। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू गो, मोस्ट सिंपलेस्ट वे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज देयर 300 मिलीमोल्स, एम मोल लिखा है ना, 300 millimoles of the ideal gas. So shall I wipe all these things? Okay. So 300 millimoles of an ideal gas occupies 13.7 dm cube at 300 Kelvin. Number of moles are given as 300 millimole. Milli means 10 raised to the power -3 यदि मैं कर दूं तो that is 0.3 mole will be there at 300 Kelvin. Calculate the work done when gas is expanded until its volume increases by 2.3 dm cube. V2 जो है इतना होगा 13.7 plus 2.3, that comes out to be 15-16 16 dm cube. So this will be the final volume. So volume increased by 2.3 dm cube. तो ये तो हो गया। अब इसमें दो अलग अलग चीजें हैं। एक जो है वो आपको सिर्फ आइसोथर्मली बोल रहा है, आइसोथर्मली अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ 0.3 बार। ओके, यहाँ पे इंक्रीज इन वॉल्यूम दिया हुआ था हमको 2.3 dm क्यूब। इसमें तीन अलग अलग प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं मेरे को, ए बी सी। इनटू वैक्यूम है वो सी है आपका, वैक्यूम में वर्क डन कितना होता है ये आपको मालूम है, दैट इज 0। तो पहले हमको ये निकाल लेना चाहिए, आइसोथर्मली अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ 0.3 बार, ये वाला। नाउ यहाँ पे बार है, दैट प्रेशर इज गिवन इन बार, कितना
0.3 बार डीएम क्यूब में आएगा आपका 0.3 इंटू okay that will be 69. This is work in bar dm cube. If you multiply it by 100 then that will be in joule. बार डीएम क्यूब को कल पढ़ाया था परसों. So that comes out to be what? Minus 69 joule. This is the one part of the problem. In the second problem, that gases are expanded isothermally and reversibly. B जो पार्ट है, देखिए एक में तीन प्रॉब्लम इकट्ठा कर दिए हमने. पहला जो था वो अगेंस्ट प्रेशर था, वहां स्मॉल वाला फॉर्मूला. दूसरे में जब बोलेंगे आप तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल. जब आइसोथर्मल रिवर्सिबल होता है तो वहां पे वर्क डन इज मैक्सिमम, and in that case you have to use this number of moles also. Then V1 and V2 both. Okay. So चलते B के लिए. B में आपको आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन मेंशन किया हुआ है. N जो है आपका 300 मिलीमोल था. मिलीमोल है तो यू कैन राइट 0.3 मोल. देन यू कैन हैव दैट R जूल पर मोल per Kelvin. Temperature is also mentioned in the beginning of the problem, 300 Kelvin. Then V1 is 13 dm cube, and that volume increases by 2.3, 13.7, right? V2 हमने निकाल लिया था 2.3 ऐड करके, कितना 16 dm cube, right? ओके. अभी यहाँ पे रेशो निकालना भी इतना सिंपल नहीं होगा ना. 16 और 13.7 का रेशो बहुत सिंपली निकाल नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो. ओके. ये माइनस साइन आप इसके ऊपर लेके जाएंगे, V1 बाई V2 करेंगे तो भी चलता है. अभी रहने देते माइनस साइन यहाँ पे. लॉग ऑफ V2 16 ये यहां से यहां तक मैं कर लेता हूं पहले. वन 1723. ओके. अब ठीक होगा. लॉग ऑफ 16 माइनस लॉग ऑफ 13.7. मैंने इतना पार्ट सॉल्व कर लिया पहले. दिस विल बी 1 पॉइंट या 16 का 0. यस, यू हैव द लॉग टेबल. यू कैन से log of 16
एक बार रिपीट, एक बार फिर से। 2041, ओके, माइनस इसका 13.7 का 1367, गुड, 1367 माइनस कर लेते हैं। So that comes out to be 0.06. So multiplication of this will give you the answer. Multiplied by 0.0674. That is 116. 116.1. ठीक, ऊपर लिखते हैं। कितना? 116.1, ओके। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट सी में। In vacuum, P external is 0. Therefore, work done will be 0. So that was the third part of the same problem. Yeah, you can switch over to exercise. Yes, बहुत सारे हैं, but particularly you can go to the question number 9, then 10, ओके 9 10 कर सकते हैं अब इस वक्त। रिमेनिंग के लिए बहुत सारा टॉपिक बाकी, इन ऑल 23 देयर, 12 11 12 problems are there overall, but we will go to that problem number 9. 1 mole of an ideal gas compressed from 500 cubic centimeter against the pressure of, that is in Pascal. Yes, the work involved in this process is 36 joule. Calculate the final volume. That was your problem number 9. One mole of an ideal gas compressed from, initial volume is given, page number 88. That gas is allowed to compressed, तो वॉल्यूम जो है कम आएगा फाइनल वाला, अगेंस्ट प्रेशर ऑफ पास्कल। The work involved in this process is 36 joule. कॉम्प्रेशन है इसलिए मैं इसमें साइन नहीं लगाऊंगा, नहीं है तो कौन सा साइन है यहाँ पे? प्लस का साइन है, ओके। So V2 minus V1 will be equal to W by P, W upon P, okay।
तो ये पास्कल में है, ये क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो इसमें चेंज करना पड़ेगा आपको, या फिर वो जो 500 है, अभी कुछ नहीं, ये पास्कल है मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये जूल है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अभी कुछ करना नहीं है। ओके, सो इसको कर देते 12, 4 हो जाएगा वो, मीटर क्यूब हो गया, या -4। So V2 minus V1 is equal to -3 into 10⁻⁻⁴। ये तो मेरा मीटर क्यूब में है, राइट। मैं इसको -6 करना चाहता हूं, नाउ दिस इज व्हाट 10⁻⁻6 is say cubic centimeter। सो इसमें V1 500 है, ये 500 है, तो V2 निकल जाएगा आपका भी। यहां देखना मैंने क्या किया, 3 को 300 में कन्वर्ट कर दिया, इसको -4 का -6 बना दिया, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। सो V1 है मेरे पास में 500, ये वैल्यू मेरे पास में है, फाइनल वॉल्यूम जो है वो कंप्रेशन में कम होगा, दैट इज 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज योर प्रॉब्लम नंबर 10। पेज नंबर आपका फिर से 88 ही है। ओके, इन दैट प्रॉब्लम कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क व्हेन 24 grams of O2 expanded isothermally and reversibly। कितना 24 grams of O2 is expanded isothermally and reversibly from a pressure of 1.6 bar to 1 bar। कॉम्प्रेस किया, एक्सपांडेड, ओके एक्सपांडेड है। .75 भी लिख सकते, जरूरत नहीं, रहने दो। देन आर देन टेम्परेचर 298 Kelvin, then a pressures are given from a pressure of 1.6। P1 जो है वो 1.6 है आपका, और P2 जो है 1 है। प्रेशर कम हो गया मतलब यहाँ पे एक्सपांशन क्लियर कट दिख रहा है। सो यू हैव टू कैलकुलेट प्रेशर कम हो गया है, इनिशियली प्रेशर वाज 1.6 एंड देन इट वाज रिड्यूस्ड 1 बार। प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, जहां वॉल्यूम बढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपांशन। So now write your formula। log P1 by P2 minus
एन का वैल्यू आप 3/4 रख सकते, R 8.314, T 300, एंड देन log of 1.6 बाय 1 रखने की जरूरत ही नहीं है, 1.6 देख सकते हैं आप। फोर 4308, इतना पार्ट मैं सॉल्व किया हूं। यस, log ऑफ 1.6 अभी बोला था किसने, तो भी थोड़ी देर पहले 16 का जो बोला था वही होगा, सिर्फ दैट विल बी 0.2040। ओके ओके, ये डिजिट आपको माफ है, लास्ट वाला जो डिजिट है उसमें एक्सक्यूज मिलता है। ओके, सो फाइनल आंसर इज 87926। हमारा 879 आ रहा है। सो दिस इज इन जून। ये लावण्य की आवाज थी। ओके। हम्म, सो वहां 874.3 दिया है, नॉट सो रिलायबल एट ऑल, दैट इज नॉट रिलायबल। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। Shall I wipe all these things? Okay. Next problem is calculate work done .14014, ओके, किलोग्राम में। and 2 at 300 Kelvin is compressed isothermally and reversibly. Till pressure becomes thrice. Three times the initial pressure. R is given. And molar mass जो है वो है
So you have to find the maximum work because the condition isothermally reversibly दिया हुआ है, that is compressed. So अब जो हमारा वर्क आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए because here is a compression. So which things are given? पहले n निकाल लेते W by m से. नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारा, राइट. देन आर का वैल्यू है हमारे पास में 8.314. इस पे भी क्वेश्चन था कल के पेपर में. तो एंड टेम्परेचर इज गिवन एट 300 केल्विन. देन P2 is 3 times P1, that is also given till its pressure, final pressure P2 becomes 3 times that of initial. Then you have to find W max. Okay, so we can have that formula. W max is equal to minus 2.303 and RT log P1 by P2. So minus 2.303 half, R का वैल्यू 8.314, T 300 और ये log है आपका P1 by P2 is 1/3. Okay, 1/3. अब ये जो माइनस साइन दिख रहा है हमको यहाँ पे, इसको मैं हटाना चाहता हूँ. यहां से इसके सिर पे लेके जाएंगे हम इसको. तो ये तो हो गया 150, then 8.314. I can write log of 3. ये माइनस साइन 1/3 के ऊपर रख दिया आपने. इनवर्स ऑफ 1/3 कितना होगा? रेस्ट टू द पावर -1 मतलब इनवर्स ऑफ 1/3 दैट इज 3. सो आपने 3 कर दिया उसको. एंड देन अभी आपके आंसर में यहां से माइनस साइन हट गया. इसके ऊपर था, इसके ऊपर से वो इनवर्स में 3 हो गया. सो लॉग लिख दिया है मैंने. वन 1370. Okay, this is in joule. Next one is हाँ बोल रहा हूँ. ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ. नेक्स्ट करते हैं. हाँ, इसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स मैं सेंड कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पे. यू कैन गो थ्रू दैट प्रॉब्लम्स. सबके लिए कंपलसरी नहीं होगा, जिनको इच्छा है कुछ करने की उन्हीं के लिए है. कार्बन मोनोऑक्साइड इज अलाउड टू एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली. Carbon monoxide is expanded isothermally and reversibly from 10 to 20
from 10 meter cube to 20 meter cube at 300 Kelvin. देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसका मोलार मास 12 प्लस 16 होगा 28 ग्राम पर मोल. That is allowed to expand at 300 Kelvin. Work obtained is 4.7 kilojoule. Calculate the number of moles. Calculate the number of moles of CO. कार्बन मोनोऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको. आर का वैल्यू वही हमारा जो हम यूज कर रहे हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. Okay, so that V1 and V2 are given. Therefore V2 by V1 कितना होगा 2 और log of 2 भी हमको मालूम है वैसे भी 3010. Then number of moles हमको निकालना है. W max is given and it is expansion. So यहाँ पे जो वर्क है इसमें माइनस साइन लगाए बगैर आपका काम नहीं होगा because this is expansion. So minus 4.754 kilojoule. You can have that to minus 754 10 raised to the power 3 joule. Then R का वैल्यू जो है वो हमारा ये है. ये जो जूल में है इसलिए हमने इसको किलो जूल से जूल में लेके गया. अदरवाइज इसको आप किलो जूल में ले लेते हैं तो हो जाता है, ऐसा नहीं है. T जो है वो 300 केल्विन है. मेरा फॉर्मूला तो है ये. राइट, तो हमको ये निकालना है तो सारी चीजें एक तरफ लेके जाना चाहिए. So N is equal to minus W max upon 2.303 RT log of V2 by V1. अभी दो माइनस साइन आएगा, एक पहले से है और एक वैल्यू में है तो वो निकल जाएगा. फोर 7 कर दो इसको. 10 रेज़ टू द पावर 3 को भी निकाल देते हैं यहां से. -4754 ये आ गया आपका. देन दिस वन इज 2.303 8.314 T is 300 and here is your log of 2. so ये प्लस हो जाएगा, अभी नहीं रहेगा. 4754 divided by 2.303 yeah, log of 2 0.3010. so that will be the number of moles. .74. So that will be the number of moles.
कि कल टेस्ट दिया है सभी लोगों ने? तेजस टेस्ट दिए? लावण्या? तेजस? ओके। सार्थक? ओके। तुषार? ओके। पूर्वा? पूर्वा? या सुजल? सुजल? दिली? गुड. ती कोमलताई आली होती काल? ओके. निधी? ओके. प्रथमेश? प्रथमेश क्या बोले? बोले ही नहीं आपने कुछ, पहले माइक बंद कर दिया. नहीं, आवाज नहीं. प्रथमेश आवाज क्यों नहीं आ रहा आपका? एक बार फिर से ट्राई करो. हम्म. ओके. प्राजक्ता? प्राजक्ता? ओके. श्रावणी टेस्ट दिए कल? गुड. कस्तूरी? कस्तूरी? ओके, आवाज नहीं आया फिर भी. ऋतुजा? गुड. श्रेया? गुड. इशिता? जानवी दहेकर? गुड. कल्याणी? अच्छा, आवाज आ गई कल्याणी. ओके. मैत्रेय टेस्ट दिया कल? वेदांत? ठाकरे? गुड. अनुजा टेस्ट दिए? बहुत जल्दी दे दिए थे कल. अनुजा? ओके. ठाकुर पेपर नाही दिला काल? तनिष्क? सिद्धेश पेपर दिए कल? ओके. सोनिया? गुड. समीक्षा? गुड. तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस मतलब प्रॉब्लम भेज दूंगा अभी सभी के लिए. यू कैन ट्राई फॉर दैट. ओके. नाउ वी विल स्टॉप द बैच. थैंक यू.